Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. In today's video we'll talk about another public university of Italy, that is University of Messina. So in this video we'll talk about the programs that this university offers and how you will fill and submit the application for admission into that university. And we'll also talk about the documents that are required for the admission, and we'll also give you a little important information about this university. So let's get started. First of all, if we talk about this university, so this university is a public university of Italy. One of the important things about public universities is that these universities are very well reputed university, and if you get into one of the public universities of Italy, it makes it way more easier to get a regional scholarship. So if you're accepted into a public university, there are like more than 90% chances that you will get the regional scholarship that is offered by Italy. So you all should apply into these public universities. We have uploaded a lot of more videos about other public universities, so you should apply in all of these universities. So it will make your chances high to get accepted in one of these public universities. So if you talk about the university, so this university was built in 1548, which makes it quite an old university. If we talk about its ranking, so it has been ranked at 851st position by QS World Ranking 2024. So it is under top 1000 universities of the world. Now, if we talk about its acceptance rate, so that's around 40 to 50%. So if 100 student applies for uh, admission, so they'll accept around half or maybe less than half of the students. Then minimum CGPA required for admission is 3. So if you have CGPA that is less than 3, like 2.7 or 2.6, so you should not apply for this university because your chances of rejection would be really high. So only you should apply only if you have 3 or more than 3 CGPA. And this university has no application fee. Now we'll talk about the programs that this university offer in English language. So this university offers a wide range of programs in English language. If we talk about bachelor's degree, so we have data analysis, political science, IR, civil engineering, medicine and surgery. And in the master's degree level, they offer engineering in computer science, international management, physics, geophysical science, cognitive sciences theory, data science, banking, finance, food quality, and international management. So you can apply in any of these programs, whichever program suits your latest degree. So now we'll start our application process and we'll guide you step by step how you can apply for the university. So we'll come to a page about application and admission. So I have added a link of this page in my YouTube description video. So if you want to submit an application, all you have to do is just click on that link and the link will take you to this page, and then you have to follow all the steps that I am about to teach you in this video. So if you talk about deadline, so the applications for 2024 to 2025 will open from February 1 for bachelor's and master's degree, but it is advised that you should apply as soon as possible. So if you talk about an application process, here you will see a link. All you have to do is just click on that link, Unime applicant portal, and it will take you to a portal where you have to register yourself first. So we'll click on the register button. Since I have registered my account already, so you can see my email address and password over here, but since you will be applying for the first time, so you will have to register yourself first. So you will click on the register button and here you will enter all of your information. यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे। फिर अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन में आओगे
और लॉगिन में आने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन अपेयर होगी जहाँ पे आप स्टार्ट माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे। सिंस मैंने पहले से ही यहाँ पे एप्लीकेशन थोड़ा बहुत ओपन किया था तो उस वजह से मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोग्रेस में आ रहा है। तो हम इसमें शो डिटेल पर क्लिक करके दोबारा एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। यहाँ से हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे। जब आप एप्लीकेशन पे आओगे और एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये पेज आएगा। इसमें आप जो है यहाँ पे अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिंगल साइकिल चूज़ कर लो, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वोकेशनल मास्टर्स चूज़ कर लो। फिर यहाँ से आप इस लिस्ट में से अपना प्रोग्राम चूज़ करोगे, लेकिन लिस्ट तभी ओपन होगी जब एप्लीकेशंस ओपन होंगे। चूँकि ये वीडियो मैं आपकी गाइडेंस के लिए एप्लीकेशन ओपन से पहले बना रहा हूँ तो यहाँ पे लिस्ट फ़िलहाल नहीं आ रही, लेकिन प्रोसेस सारा जो है यही होगा। जस्ट आपने यहाँ से प्रोग्राम चूज़ करना है। यहाँ से आप प्रोग्राम चूज़ करोगे और फिर आप नेक्स्ट प्रेस करोगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप आ जाओगे पर्सनल डिटेल्स पे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपका सरनेम, फैमिली नेम आ जाएगा जो आपका लास्ट नेम होता है। फिर यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे जो आपका पहला नाम होता है, और फिर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे जो है अपनी लिखोगे। वो सब लिखने के बाद आप यहाँ पे फ़ोटो में अपनी एक पिक्चर जो है वो अपलोड करोगे। वो आप कैसे अपलोड करोगे, यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करोगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे और वो अपलोड कर दोगे। पिक्चर आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर JPG फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन JPG फॉर्मेट में, और अगर आपकी JPG फॉर्मेट में है तो आप बस डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो। फिर आप अपना जेंडर चूज़ करोगे। जेंडर में आपका जो जेंडर है वो चूज़ कर लो। फिर सिटी ऑफ बर्थ जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है वो आप यहाँ पे लिख लो। फिर कंट्री ऑफ बर्थ में आप कंट्री ऑफ बर्थ लिख लो जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है। फिर आप नेशनैलिटी में अपनी नेशनैलिटी लिखोगे, जिस कंट्री की नेशनैलिटी है आपके पास। फिर आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आओगे जहाँ पे आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी हो लेकिन आप रह रहे सऊदी, दुबई, इंडिया और कहीं, तो आप फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वही जगह डालोगे जहाँ पे आप परमानेंटली रह रहे हो। फिर यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, वो आपका पहले से ही लिखा होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा होगा। यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट में जो है अपने पासपोर्ट की एक कॉपी अपलोड करोगे। कॉपी आप कैसे अपलोड करोगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी कॉपी अपलोड कर दोगे। फिर आप आओगे कॉन्टैक्ट्स डिटेल पे। कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स में जो है आप अपना ईमेल एड्रेस सबसे पहले लिखोगे। फिर आप अपने स्ट्रीट का एड्रेस लिखोगे जो भी आपके स्ट्रीट का एड्रेस है, और फिर नीचे आप अपना सिटी लिखोगे जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस सिटी में, उसका पोस्ट कोड लिखोगे। पोस्ट कोड लिखने के बाद आप जो है कंट्री लिख के अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। अगर आप टेलीफोन नंबर भी लिखना चाहते हो आप वो भी लिख लोगे, और फिर यहाँ से आप नेक्स्ट प्रेस करके अगले स्टेज पे चले जाओगे। अगले स्टेज में आपके पास है लैंग्वेज। तो यहाँ से आप जो है अपनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो चूज़ करोगे। अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो B2 लेवल की है तो आप B2 चूज़ कर लो। C1 लेवल की है C1 कर लो। C2 है तो वो कर लो। इन B1, B2, C1, C2 मीन्स प्रोफिशेंसी। आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उतनी इंग्लिश आपकी प्रोफिशेंट होगी। तो B1 जो है वो बेसिक होती है, फिर B2 उससे बेटर होती है, C1 जो है वो अच्छी होती है, और C2 जो है वो फिर बहुत अच्छी होती है। ये आपके आइल्स के रिज़ल्ट पे गिवन होगा कि आपकी प्रोफिशेंसी किस लेवल की है। अगर आपने आइल्स नहीं दिया फिर भी आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे B1, B2 अपने जो है टॉफिल या किसी और सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर लो, क्योंकि ये आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ऑलरेडी जो भी आपने टेस्ट दिया होता है। फिर यहाँ पे आप अपना इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन चूज़ करोगे जो आपका आइल्स होगा या फिर टॉफिल होगा, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर फिर कोई और होगा आपका अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट में जो है आप यहाँ पे अपना अपलोड पे क्लिक करके अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद आप सेव करके यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट पे आने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी CV अपलोड करोगे। CV आपकी यूरोपास। फिर आप आओगे हाई स्कूल एजुकेशन में। हाई स्कूल एजुकेशन में अगर आपके पास
इंटर का सर्टिफिकेट है तो आप येस चूज़ करोगे यहाँ से। फिर आप यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। वो अपलोड करने के बाद आप अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे लिखोगे। फिर कॉलेज की कंट्री लिखोगे जिस कंट्री में आपने कॉलेज पढ़ा, और फिर यहाँ पे ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप चूज़ करोगे, जो कि हमारा पाकिस्तान में होता है 12 to 13। फिर आप आओगे यूनिवर्सिटी के अदर डिटेल्स पर। तो आप यहाँ पे हायर एजुकेशन में जो है सबसे पहले अपनी डिग्री चूज़ करोगे जो आपने की है सबसे लेटेस्ट और जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो हमारे पाकिस्तान में जो है 4 ईयर्स की डिग्री होती है, तो हम बैचलर 4 ईयर्स का ही चूज़ करेंगे यहाँ से। फिर हम यहाँ पे अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करेंगे। बैचलर्स की डिग्री अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे, और फिर यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की कंट्री लिखोगे। कंट्री लिखने के बाद आप अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जिस साल आपको आपकी डिग्री मिली है, आप वो डेट लिखोगे। फिर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, जो आपके बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपना मेजर लिखोगे, जिस मेजर में आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री ली है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ से अपनी फील्ड ऑफ स्टडीज़ चूज़ करोगे। अगर आपकी लॉ में है लॉ कर लो, अदर साइंसेस में है, इंजीनियरिंग में है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जिससे भी आपकी रिलेटेड है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे है कि आपका जो ग्रेड है वो आपके ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हुआ है। तो हाँ, हमारे ट्रांसक्रिप्ट पे हमारा ग्रेड लिखा होता है, तो हम यहाँ से येस चूज़ करेंगे। फिर आप एवरेज ग्रेड ऑफ मोस्ट रिसेंट डिग्री लिखोगे। अब की जो लेटेस्ट डिग्री होगी, अगर आपने मास्टर्स किया है मास्टर्स का यहाँ पे लिखोगे, और अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप बैचलर्स की डिग्री का जो आपका ग्रेड है, जो आपका CGPA है, वो यहाँ पे आप लिख लोगे। फिर आप आओगे नीचे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे येस क्लिक करोगे। येस क्लिक करने के बाद जो है आप अपने एक्सपीरियंस की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लोगे। एक्सपीरियंस अगर आपका पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, प्रोजेक्ट बेस है, इंटर्नशिप है, वॉलंटियरी है, तो आप ये सारों में से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस का टाइम लिखोगे, जितने ड्यूरेशन का आपका एक्सपीरियंस था, और जिस कंपनी के साथ आपने एक्सपीरियंस किया वो लिख लोगे। उसका सेक्टर लिख लोगे, जिस सेक्टर से वो रिलेट करती है, प्रॉपर्टी है, रिटेल है, लॉ है, IT है, मेडिसिन है। फिर आप कंट्री लिखोगे जहाँ पे आपने वो एक्सपीरियंस किया है। फिर यहाँ पे डिटेल्स जो है आप यहाँ पे लिख के अपने एक्सपीरियंस में जो अपने एक्सपीरियंस का रेफरेंस लेटर यहाँ पे अपलोड कर दोगे। रेफरेंस लेटर जो है आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट है अगर, तो उसके सुपरवाइज़र से लोगे। अगर कोई आपका कंपनी में आपने किया है तो वहाँ पे आप लोगे, हायर जो अथॉरिटीज़ है वहाँ की, तो आप जो है एक रेफरेंस लेटर जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपलोड करोगे, अपने एक्सपीरियंस की जगह से लेके। फिर आप इसको सेव करके यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपके पास क्वेश्चन है कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कुछ भी, फेसबुक से आपको पता चला, लिंक्डइन से पता चला, वो आप लिख लोगे। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में येस करोगे। फिर येस करने के बाद आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे भी येस करोगे, और फिर यहाँ से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो। क्योंकि मैंने अभी फिल ही नहीं किया तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो आप, ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ हमसे कमेंट्स में पूछिएगा, और अगर आपको दूसरी किसी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस जानना है तो आप प्लीज़ वो भी पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम इसी तरह जो है हर रोज़ आपको गाइड करने के लिए स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन के बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे। और जिस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, हम उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।